Welcome students in our YouTube channel Discovery International School collaboration with the YCL, the brand of quality education. You can see on the board, we provide very good and fantastic environment and very good and fantastic facilities for the preparation of JEE and NEET examination. Okay, you will get a very good and very fantastic videos from our this platform. Okay, subscribe our YouTube channel and push the bell icon for getting latest update. If you push the bell icon, you will get latest videos which we have uploaded with the YouTube. Okay, so in previous video I have explained about the plant physiological different portion, especially plasmolysis. Okay, in this video I would like to explain about different type of pores. What are different type of pores which are found, which are generated into a cell of especially of plants. Okay, different kind of pressure into plant's cell. Okay, for the understanding of this topic, we have to draw a specific kind of structure or cell or plant. So try to understand, it is a structure of plant cell. Okay, it is cell membrane, and it is cell vacuole, and it is cytoplasm cell organelles and all material which are required and which are especially found into cell. Clear? When we keep this cell into a hypotonic solution, then मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल अकर, यानी कि जब हम इसको किस में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में. आप जानते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, मैंने 3 कंडीशन बताई थी सॉल्यूशन की. हाइपर हाइपो आइसो, हाइपर हाइपो आइसो, हाइपर टोनिक. टोनिक का मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन. ओके, व्हेन इंक्रीज और फाउंड, it is known as especially hypertonic solution. Okay, and when the concentration of solute particles found in a very less than any other solution, then it is known as hypotonic solution. And when two solutions are found comparatively with each other and both has similar concentration of solute as well as similar concentration of solvent, this type both type of the solution known as isotonic solution. Okay, so let us start. When the cell keep in a hypotonic solution, then when we keep which kind of हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो बेटा इसमें सॉल्यूट है वो कंसंट्रेशन लेस होगी, ऐसे एरो लगा देता हूं, और सॉल्वेंट कैसी होगी? हाई. सॉल्वेंट क्या होता है? जनरली वी नो द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज नोन एज वाटर. सो वाटर, entry of water take place
into this cell. ओके, इस सेल में एंट्री ऑफ वाटर हो जाती है बेटा. वाटर की एंट्री होने से आप ये जानते हैं कि इसमें प्रेशर क्रिएट होता है. A specific kind of pressure created due to entry of water or endosmosis in a cell. This pressure exert a very great pressure on this structure, that means cell wall. Okay, सेल वॉल के ऊपर ये प्रेशर लगता है, और सेल वॉल के ऊपर ये प्रेशर लगता है तो इसे क्या कहते हैं? इट इज स्पेशली नोन एज टर्गर प्रेशर. ओके, due to endosmosis, by keeping a cell into hypotonic solution, entering of water take place. Okay, and due to entering of water, increasing pressure into cytoplasm take place slowly, and this increasing of pressure into cytoplasm exert a pressure on the cell wall. It is known as especially turgor pressure, and due to turgor pressure, a turgidity remaining occur into a cell, and due to turgidity, a cell remaining alive form and in growth form, in as dividing form. Okay, तो दूसरा, अब आप ये समझ रहे हैं कि ये जो टर्गर प्रेशर होता है, ये टर्गर प्रेशर जिस प्रकार से कि टायर में जो हवा भरी जाती है, ट्यूब में हवा भरी जाती है, वो धीरे धीरे ट्यूब यूँ फूलती जो होती है, एक्सपेंशन कर दी जाती है. एक टाइम ऐसा आएगा ब्राग, यानी कि ब्रस्ट हो जाएगी. लेकिन ये ब्रस्ट नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्यों इसलिए नहीं होता है ये सेल ब्रस्टिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि सेल वॉल एक ऑपोजिट फॉर्म में एक प्रेशर लगाती है इसके. एन ऑपोजिट फॉर्म ऑफ ए प्रेशर एक्सर्ट बाय सेल वॉल जस्ट ऑपोजिट टू दिस प्रेशर इज नोन एज by the cell wall is known as wall pressure. Number 2, wall pressure. Okay, it can be write TP, it can be write WP. Okay, number 3, if increasing of solute particles occur into solution of the cell. Okay, if increasing of solute particles occur into solution of this cell, it causes a pressure which is known as osmotic pressure. Okay, osmotic pressure we can write OP. Number 3, osmotic pressure, you can write OP. Okay, osmotic pressure I have explained it earlier in previous YouTube video. Osmotic pressure is directly proportional to increasing of concentration of solute in any form of solution. Okay, किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, कंसंट्रेशन इसकी बढ़ती जाएगी, और बढ़ती हुई इसकी कंसंट्रेशन इसके ओपी को भी बढ़ाती जाती है. दैट मीन ओपी किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजिंग ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन. ओके, एंड फोर्थ, नंबर 4, the pressure, specific pressure is known as DPD. और DPD एक टॉपिक भी बनता है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. इसको मैं थोड़ा यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा बेटा. सोलान, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, रिडक्शन, कमी होना, किसकी? डिफ्यूजन प्रेशर की. ओके,
डिफ्यूजन प्रेशर की कमी होना, रिडक्शन होना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहलाता है या डीपीडी कहलाता है। अब यहाँ समझेंगे हम इसके एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से, और वो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर बन रही है। सपोज दैट इट इज ए ग्राफ हियर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हियर ओपी, और यहां पर टीपी 0 एंड मैक्सिमम। ओके, when we put any of cell into hypotonic solution, वही पहले वाली कंडीशन, जब हम किसी भी सेल को किस में रखते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, और इस सॉल्यूशन में आप जानते हैं सोल्यूट पार्टिकल या इनकी कंसंट्रेशन कम होती है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई होती है, जिसके कारण एंडोस्मोसिस की प्रोसेस होती है। एंडोस्मोसिस की प्रोसेस होने से कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑफ ट्रिगर प्रेशर टेक प्लेस। पढ़ चुके हो आप अभी। ड्यू टू एंडोस्मोसिस इंक्रीजिंग ऑफ a pressure into solution into a cell occur, it help to increase the turgor pressure. So here continuously increasing of turgor pressure take place, and due to increasing of turgor pressure you can see here decreasing of osmotic pressure take place continuously. Okay, at here this condition we can say at this point this related cell change into fully turgid cell. So whole turgid cell. Okay, reduction of OP and a increasing of TP you can see here, and it is DP. Here DPD is maximum, and reduction of DPD occur with the increasing of टर्गर प्रेशर। जो टर्गर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, डीपीडी कम होती जा रही है टर्गर प्रेशर के बढ़ने से। यू कैन सी हियर टर्गर प्रेशर के बढ़ने से किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है? वाटर की, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, यानी कि डीपीडी को हम डायरेक्टली रिलेशन इसका बता सकते हैं, डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी। सिंपल थिंग, it is also can be OP that mean also can be known as सक्शन प्रेशर। क्या कहलाता है? सक्शन प्रेशर, क्योंकि यहाँ सक्शनिंग होती है, रिवर्स ओस्मोसिस की प्रोसेस होती है एक तरह से, और यहाँ पर इसको ऑब्जॉर्व करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, उसका ओपी बढ़ता जाता है, और यही क्या होता है? डीपीडी होता है। यानी कि मैं आपको यहाँ एक छोटे से एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर में कमी होना, डेफिशिएंसी आना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहलाता है। आप यहां समझिए, इट इज अ वाटर कंटेनर कंटेन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर प्योर वाटर, 1 liter pure water. Okay, this water has maximum diffusion pressure. By putting any type of cell into this water, endosmosis occur and turgor pressure will increase very highly. After some time, when we add a pinch of solution, a pinch of solvent into this water container, मान लो इसमें जो 1 लीटर पानी है उसके साथ हमने क्या किया? 1 चुटकी सोल्यूट पार्टिकल डाल दिया।
ये 1 लीटर प्योर वाटर है, लेकिन हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, हमने इसमें ऐड कर दिए सॉल्यूट पार्टिकल्स, चीनी या शुगर या फिर क्या, NaCl, एंड व्हाइट कलर सॉल्वेंट पार्टिकल्स। प्योर वाटर का डीपीडी है, प्योर वाटर डीपीडी इक्वल्स टू 0। अब यहां पर इसका जो डीपीडी है, जो डिफ्यूजन प्रेशर है, वो पर्टिकुलर है, और इसमें जो ही हमने NaCl डाल दिया, इसका डीपीडी रिड्यूस हो गया। ओके, सो रिडक्शन ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर, reduction of diffusion pressure comparatively to pure water after adding a pinch or a certain amount of solid particle with pure water is known diffusion pressure deficit, and this deficiency of diffusion pressure occur due to dissolving of solid particles by consumption of a little amount of energy। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्योर वाटर की डीपीडी है वो ज्यादा होती है, डीपीडी यानी कि सॉरी उसकी कम होती है, जबकि डीपीडी यानी कि उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है, और उसके डिफ्यूजन प्रेशर में ही क्या हो गया, कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी एक पार्टिकुलर मैटर उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स के डालने से या सॉल्यूट मटेरियल के डालने से। समझ गए हो? इस प्रकार से किसी भी सॉल्यूशन की डीपीडी हमेशा प्योर वाटर से कैसी होती है, डीपीडी अधिक। हम ये मानेंगे कि ओपी के साथ साथ डीपीडी भी बढ़ता जाता है। डीपीडी के बढ़ने का मतलब है सॉल्यूट पार्टिकल्स का बढ़ना और सॉल्वेंट का घटना। सीधी सी सिंपल सी बात है, डीपीडी बढ़ती जाती है, दैट मीन इंक्रीजिंग ऑफ थ्रस्ट ऑफ वाटर, यानी कि पानी की प्यास बढ़ती जाती है उस सॉल्यूशन की, दैट मीन डेफिशिएंसी ऑफ वाटर ऑल्सो अकर। डीपीडी बढ़ती है, वाटर की कंसंट्रेशन घटती है, और जो जो किसी सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, डेफिनेटली क्या होगा, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं उसमें एंडोस्मोसिस की प्रोसेस होगी, जिससे टर्बिडिटी बढ़ेगी। ओके, द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर, डीपीडी, ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी एक्सेट्रा, ये और छोटा सा एक टॉपिक है, समझ लीजिए। Okay, so relation between different pressure, DPD is equals to OP minus TP. It is the formula. DPD always equals to osmotic pressure minus turgor pressure. It should be calculated for 3 type of cell. 3 types of cell. First type of cell is, flaccid cell. Flaccid cell has what is जीरो टर्गर प्रेशर, क्योंकि जब वो फ्लैसिड होती है तो उसमें टर्गर प्रेशर नहीं है, और टर्गर प्रेशर नहीं है इक्वल्स टू टीपी इक्वल्स टू 0, यानी कि फ्लैसिड सेल के लिए टीपी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होती है। वी कैन पुट दिस वैल्यू इनटू दिस फॉर्मूला, DPD is equals to OP minus 0, then it will be DPD is equals to OP। यानी कि किसी भी फ्लैसिड सेल के लिए DPD की वैल्यू क्या होती है, उसके OP के बराबर होती है, इक्वल होती है। ओके,
And the second point, full targeted cell. For the full target cell, you know very well. For the full target cell, TP always equals to WP. Okay, TP is always equals to WP and WP is always equals to OP. यानी कि इसकी TP टर्गर प्रेशर हमेशा इसके किसके इक्वल होता है? वॉल प्रेशर के इक्वल होता है और वॉल प्रेशर हमेशा इक्वल होता है इसके OP के. ओके, सो वी कैन राइट इफ OP is equals to 10 and TP is equals to minus 10 10, then DPD is equals to 10 minus 10 equals to 0. Okay, DPD equals to 0. तो किसकी, कौन सी सेल की? फुल टारगेट सेल के लिए, क्योंकि टीपी की वैल्यू डब्ल्यूपी के बराबर होती है तभी वो ब्रस्ट होने से बच जाती है. डब्ल्यूपी और वॉल प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर जब दोनों इक्वल होंगे तभी वो फटने से बचेगी और टर्गर फॉर्म में बनी रहेगी. और इस कंडीशन में उसके डब्ल्यूपी के इक्वल क्या होता है? ओपी होता है. अब मानो दोनों की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो वैल्यू को पुटअप कर दो. आप तो जानते हो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, वैल्यू रख दो, दोनों आपस में क्रॉस हो जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी. सिंपल सी थिंग है इसमें. पॉइंट नंबर 3, डीपीडी और प्लाज्मोलाइज्ड सेल, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस होने के बाद में जो सेल होती है उसकी क्या कंडीशन होती है, उसकी डीपीडी कितनी होती है. यदि कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़े तो आप कैसे उसको कैलकुलेशन कर सकते हो, कैसे इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हो. सिंपल सी बात है, the value of TP for plasmolyzed cell is equals to नेगेटिव, क्योंकि वो प्लाज्मोलाइज कर गई, फ्लैसिड फॉर्म से भी ज्यादा उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया उसके प्रोटोप्लाज्म में. जब उसकी प्रोटोप्लाज्म में और भी ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया, दैट मीन टर्गर प्रेशर तो और भी ज्यादा घट गया. 0 किसके लिए होता है? फ्लैसिड सेल के लिए. और ये और भी ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो अब क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू होगी. और नेगेटिव वैल्यू होगी तो आप रख सकते हैं वी नो दैट डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी. अब यहां पर ये वैल्यू है एंड टीपी इक्वल्स टू नेगेटिव, वैल्यू रख दो. डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी. नाउ इट विल बी डीपीडी ओपी प्लस टीपी. दिस फॉर्मूला can be utilized for the calculation of DPD for plasmolyzed cell. Okay, तो बेटा इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है? किसी एक सेल में कौन कौन से प्रेशर होते हैं उनको पढ़ा है. उनको पढ़ने के साथ साथ उनका आपस में रिलेशन क्या है उनको पढ़ा है. ये प्रेशर किसके कारण पैदा होते हैं इन चीज़ों को पढ़ा है. और इनसे रिलेटेड नीट में एक क्वेश्चन हर साल आता है. एवरी ईयर कम्स वन क्वेश्चन. और वो क्वेश्चन ने आपको मैं बता दूं इसी फॉर्मूले से सोल्व किया जाता है और उसमें हेल्प ली जाती है वाटर पोटेंशियल फॉर्मूला की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर पोटेंशियल. ओके, कीप इट इन योर माइंड. You should remain in a connectivity with us by subscribing our YouTube channel. And by pushing the bell icon, you will get new and latest
vacation. Okay, bye and take care, बेटे.